ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی ایپیسوڈ نمبر 7۔ بالآخر دونوں اپنے گرو گھنٹال سائیں کوڑیل کے آگے ملتجیانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، پیر سائیں ہمیں کوئی اور کام دے دو، مگر اس روحوں والے چکر سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ ان دونوں کے بیک وقت دادے فریاد کرنے پر سائیں کوڑیل فوراً بولا، ارے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تم دونوں کوئی معمولی شخص کے آدمی ہو، کسی کی کیا مجال کہ پیر سائیں کوڑیل کے چیلوں کا کوئی ذرا بھی کچھ بگاڑے۔ میں تم دونوں پر پڑ پھونک دوں گا، ہر بلا تم سے دور رہے گی۔ اس کی بات سن کر اربیلو اور مگو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت دونوں کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ سائیں کوڑیل کو اس کا جواب دیں کہ سائیں پھر آپ کیوں اس رات بٹ سائیں کی جھونپڑی سے سومری کی بدرو کا نظارہ کر کے دم دبا کر بھاگے تھے؟ مگر ان میں یہ جرأت نہ ہو سکی۔ ناچار حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق دونوں بیچاروں نے اپنے سر جھکا دیے۔ گرمیوں کا موسم رخصت ہو چلا تھا۔ یہ گوٹھ چونکہ نیم صحرائی علاقے پر مشتمل تھا، اس لیے یہاں گرمیوں اور سردیوں دونوں کا ہی پورا غلبہ رہتا تھا۔ سردیوں میں راتیں قہر آلود ہو جاتی اور پورا ماحول دبیز دھند میں لپٹا رہتا، حتیٰ کہ صبح بھی قہر میں لپٹی رہتی تھیں۔ مگر اس دن صبح کو قہرہ سویدے ہی چٹ گیا تھا اور گوٹھ کے کچے گھروں کے منڈیروں پر چمکیلی اور خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اور حاجی میر محمد مرحوم کے کچے گھر کا شکستہ صحن، جہاں ایک جھلنگا سی چارپائی پر میر محمد کی بیوہ مثل زندہ لاش کی پڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس کی عمر اتنی زیادہ بھی نہ تھی، لیکن شوہر کی ناگہانی اور بے وقت کی حادثاتی موت نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا اور کمزور کر ڈالا تھا۔ بڑھاپا اور بیماری تو ویسے ہی لازم و ملزوم ہیں، اس پر مستزادہ کہ اگر غم بھی لگ جائے تو دیمک کی طرح روح کو بھی چاٹ جاتا ہے۔ بیچاری ایک کونے میں پڑی اب زندگی کے دن ہی پورے کر رہی تھی۔ صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دوسری چارپائی پر میر نواز اور احمد نواز بیٹھے ناشتے کے نام پر چائے پاپے کھانے میں مشغول تھے۔ ان کی جوان بہن سکھاں اپنی دونوں بھائیوں کو ناشتہ دینے کے بعد خود بھی رسوئی میں بیٹھی چائے اور پاپے کھا رہی تھی۔ ایک طرف کونے میں چھپڑ کے نیچے ایک بھینس کھولی کے قریب کھڑی جگالی میں مصروف تھی۔ اس کے ارد گرد چارہ بکھرا ہوا تھا، جہاں کڑکڑاتی ہوئی مرغیاں دانے دنکے ٹونگ رہی تھی۔ فضا میں ٹھنڈ کا اثر غالب تھا، مگر تیز اور چمکدار دھوپ ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈک بھی خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ دور کہیں آٹے کی چکی بھی اپنی مخصوص آواز بیدار کر چکی تھی۔ اچانک باہر سے کسی نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ کیڑا ہے بابا؟ کون ہے بھائی؟ بڑے بھائی میر نواز نے چائے کی پیالی کی لمبی چسکی لے کر با آواز بلند دروازے کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ ارے در کھولو، پولیس آئی ہے، دوسری طرف سے کسی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور دونوں بھائیوں کا ماتھا ٹھنکا ہی نہیں، رسوئی میں بیٹھی جوان سال سکھاں بھی پولیس کے نام سے اس طرح دہل کر رہ گئی جیسے باہر کوئی بلا کھڑی ہو۔ دونوں بھائی بیچارے حیران و پریشان چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سکھاں بھی چہرے پر سراسیمگی کے آثار لیے رسوئی سے باہر نکل آئی۔ دونوں بھائیوں کا ایک روز پہلے پولیس کی کارکردگی کا بڑا تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کی آمد پر آپس میں کسی قسم کا تبادلہ خیال کیے بغیر فوراً دروازے کی طرف بڑھے اور کنڈی کھولی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ قسمت اچھی تھی،
उनके चेहरे दरवाजे के दोनों पट्टों की जिद में नहीं आए। सामने इंस्पेक्टर आलीजा करख्त चेहरे के साथ नजर आया। उसके अकब में पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी, जैसे किसी नामी गिरामी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए आए हों। ये समा देखकर दोनों भाइयों की आंखें फैल गईं। अरे लगाओ इनके हथकड़ियाँ और डालो गाड़ी में, जल्दी बाबा, इंस्पेक्टर आलीजा ने अपने अकब में खड़े पुलिस एहलकारों से कहा। बस फिर क्या था कि आनन फानन हक्का बक्का खड़े दोनों सादा लो भाइयों को पुलिस हथकड़ी लगाकर जब मोबाइल में बिठाने लगी तो अंदर खड़ी जवान साला सखा, जिसे अपने सर से चादर ही नहीं बल्कि छत भी सिरकती हुई महसूस होने लगी थी, यकदम हाथ जोड़कर दरवाजे पर आ गई और उसके हलक से बरामद होने वाली सुरीली बाज गश्त दादो फरियाद के अंदाज में जब जलादे सिफ्त इंस्पेक्टर आलीजा के कानों से टकराई तो उसे ये दादो फरियाद से ज़्यादा किसी रस भरे गीतों के बोल की तरह महसूस हुई। वो अपनी जगह पर जम गया। वो किसी रिपोर्ट की तरह फैली हुई आंखों के साथ उस सुरीली नगमगी की तस्दीक के लिए दरवाजे की तरफ घूमा तो उसे सखा की सूरत जैसे गुडड़ी से झांकता हुआ लाल नजर आया और उस मुजस्समे सरापाए हुस्न व मासूमियत के पुरहवस नज़ारे के लिए उसकी आंखें जैसे उबल पड़ीं। उसे यकीन ही नहीं आया कि इस गारे मट्टी की छत के तले ऐसा मुजस्समे हुस्न भी मौजूद हो सकता है। साईं, मेरे भाइयों के क्यों ले जा रहे हो? मेरा तो उनके सिवा दुनिया में और कोई नहीं है। मासूम लबों की फरियाद ने गोया हुस्न को दो आतशा बना दिया। उधर अबुल हाउस को शाखसाना मिला और इंस्पेक्टर आलीजा के स्याह बद्दे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर ने पीकरे हुस्न का हसूल आसान बनाने के लिए रवायती सख्त मिजाजी से कहा, तेरे इन दोनों भाइयों ने खून किया है छोकरी, और वो भी डेरे के आदमी का समझे। नहीं नहीं साईं, मेरा भाई इतने बड़ा जुर्म नहीं कर सकते। आपको किसी ने झूठी खबर दी है, ये झूठ है। हुस्न दिलो अरा की इस बहती गंगा ने इंस्पेक्टर के अंदर हलचल मचा दी। तो ठीक है, फिर जो सच है वो थाने आकर बता देना। ये कहते हुए इंस्पेक्टर वापस मुड़ा और मोबाइल में जा बैठा। सखा की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। बट साईं का आज मूड बहुत ख़राब हो रहा था। यही सबब था कि उसने आज किसी भी साइल को अपनी पाबोसी की इजाज़त ना बख्शी। उसके मुरीद अपने पीर के जलाल से बखूबी वाक़फ़ थे और जानते थे कि बज़िद रहना पीर के जलाल को मज़ीद हवा देने के मतरादफ था। लिहाजा वो सब आते रहे और बेनीलो मराम बारी बारी वापस लौटते रहे। बट साईं की असल परेशानी सोमरी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी असलियत गोठ के किसी फ़र्द के सामने आश्कारा हो, मगर हुआ वही जिसका डर था। कोड़ियल शाह को वो अच्छी तरह जानता था, जो सोमरी की रूह को देखकर खौफ से दुम दबाकर भागा था। यही नहीं, उस रात सोमरी ने बट साईं को कोड़ियल शाह के मकासद से भी आगाह कर दिया था कि वह उसके बट साईं के पास किस लिए आया था। ये और भी बुरा हुआ था, शक्कर खोरे को शक्कर मिल गई थी। अब वो उसके चर्चे खूब करेगा। दूसरी अहम बात जो बट साईं को परेशान किए दे रही थी, वो सोमरी का कहरो गज़ब था, जिसने बिल आखिर ये तय कर लिया था कि उसके महबूब बट साईं को दोबारा किसी ने सताने या टूह लेने की कोशिश की तो वो आइंदा भी अपना खौफनाक नज़ारा पेश करके उन्हें खौफ ज़रदा करती रहेगी। मगर बट साईं को ये तमाशा मंजूर ना था। लिहाजा जब वो सोमरी को उसके खौफनाक इरादों से बाज रखने की खातिर रात के भेदों भरी तारीकी में कब्रिस्तान पहुंचा और सोमरी की कब्र के सामने खड़े होकर उसे धीरे से पुकारा तो नीलगों धुएं की शुआएं सी बनने लगी। सोमरी, ऐसा ना कर, क्या तू मुझे फिर मुसीबतों में देखना चाहती है? बट साईं की आवाज़ में लर्ज़श थी,
नीलगों माइल धुआं अब इंसानी शबी इख्तियार कर चुका था। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मुसीबतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। इंसानी शबी जो दुसोमरी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी बोली, मलोक, मैं अपने जालिम और संग दिल बाप को अच्छी तरह जानती हूँ, जिसने अपनी झूठी शान की खातिर अपने बेटी के खून से हाथ रंग लिए। वो एक दिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असल रूप के साथ मेरे बाप का सामना करो और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस तुम्हें देखकर कड़ता रहेगा। यही मेरे अपने बाप से इंतकाम होगा। लेकिन सोमरी, इस तरह तो पूरे गोठ का सुकून बर्बाद हो जाएगा। बट साईं ने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहाँ के सादा और नादान लोगों ने मेरे मौत कदों की हैसियत इख्तियार कर ली है। मेरे और तेरे बाप सलार खान के झगड़े में पूरा गोठ हंगामों की ज़िद में आ जाएगा। ये मासूम और बेगुनाह लोग जोश अकीदत में मुझ पर अपनी जानें भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। मेरे सरीजन, ये मेरे इख्तियार में नहीं होगा। जवाबन सोमरी ने सोगवारी अमीर बेबसी से कहा, मुझे जिस हालत में बेगुनाह कत्ल किया गया वो मेरे अंदर एक बेकरार सी फांस बनकर चुभ गई है। ये फांस तभी निकलेगी जब जालिम अपने जुल्म की सज़ा भुगतेगा। तुम खुद बताओ मेरे सरीजन, मैंने या तुमने ऐसा क्या गुनाह किया था? फ़कत एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत की शमा ही तो रोशन की थी। हमारी पाकीज़ा और मासूम मोहब्बत की तो फरिश्ते भी गवाही देंगे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो हमारे ज़मीर पर बार बन जाता। तुमने खुद मुझसे कहा था कि हमारा और तुम्हारा मिलन नामुमकिन है। फिर तुम्हारे कहने पर ही मैंने तुमसे मिलना भी तर्क कर दिया था, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर थी। तुम्हारा ख्याल दिल से निकालने की कोशिश की तो तुम्हारा नाम मेरे लबों पर खुद ब खुद आ जाता, और एक रोज़ आलम ख्वाब में तुम्हारा नाम बड़बड़ाने पर मेरे बाप ने तैश में आकर हालत नींद में ही मुझे कत्ल कर दिया। ये बताते हुए सोमरी की सिसकियाँ कब्रिस्तान के पुरहौल माहौल में गूंजने लगीं। सोमरी और मोहम्मद मलूक बट साईं बातों में इस कदर मगन थे कि उन्हें एहसास ही ना हुआ कि उनके थोड़े ही फासले पर लई के एक छोटे और छतनार पेड़ के अकब में कोई छुपा उन दोनों की गुफ्तगू को दिल थामे हुए सुन रहा था। ये साईं कोडियल था, एक अनोखे और पुर इसरार राज का अपनी खुली आंखों से नज़ारा करते हुए वो इस ठठरती सर्दी के बावजूद सर से पांव तक पसीने में नहा गया था। वो एक नाकाबिले यकीन मंजर देख रहा था। अगर कोई दूसरा इंसान ये खौफनाक और नाकाबिले यकीन मंजर देख लेता तो दहशत ज़दा होकर वहीं गिर जाता, मगर साईं कोडियल खुद सिफली अलूम का माहर था और काले जादू के असूल के लिए उसने कितने ही अमल किए थे। वो रात भर वीरानों में जाकर चिल्ला कशी की थी, मगर अब तक वो एक रूह की झलक भी ना देख सका था। लिहाजा ये मंजर उसके लिए बायसे इश्तियाक और हस्बे आरजू था। उसे भी अब हल्की हल्की सी कपकपी महसूस हो रही थी। साथ ही वो बट साईं पर अंदर ही अंदर पीछोताब खा रहा था, जिसे रूहों को काबू करने का सिफली इल्म आता था। मगर एक बात कोडियल के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी, वो ये कि उसका उन दोनों से फासला ज़्यादा था। बट साईं और सोमरी की बातों की आवाज़ें तो उस तक पहुंच रही थी, मगर वो उनका मफ़हूम नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। बहरतौर वो तने की आड़ से चिपका उन दोनों पर बराबर नज़रें जमाए हुए था। चार सू दबीज़ कहरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी भी माहौल को मलजगी किए हुए थी। एक हैबतनाक खामोशी सी छाई हुई थी हर सू। और फिर साईं कोडियल को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे सोमरी की कब्र की तरफ से अब खामोशी छा गई हो, मगर दूसरे ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे सर्दी का एहसास बेतदरीज बढ़ता जा रहा हो। कोहर की चादर भी दबीज़ होती जा रही थी। साईं कोडियल शाह का माथा ठनका और उसके अंदर ख़तरे की घंटियां बजने लगीं। उसने फ़ौरन लौटने की खातिर कदम बढ़ाने चाहे, मगर वो जैसे ज़मीन में गड़ कर रह गए।
अब तो उसकी सांस सीने में अटकने लगी और उसके कानों में सोमरी की रूह की धमकी गूंज रही थी कि अगर दोबारा उसने कभी टोह लेने की कोशिश की तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मौत के खौफ ने उसके मखनी से वजूद में कई गुना ताकत भर दी, मगर वह कदम उठाने से फिर भी कासर रहा। उधर सर्दी और कोहर की चादर गहरी से गहरी होती जा रही थी। ठीक उसी वक्त फिजा में एक हौलनाक कहका गूंजा। साईं कोड़ियल ने फौरन ही मंतर जंतर बदबदाना शुरू कर दिया। उसने बमुश्किल अपने खौफ पर काबू पा रखा था। उसे एहसास हो गया था कि वो एक खतरनाक बदरूह के पंजे का शिकार होने वाला है। ठीक उसी वक्त एक समय खराश आवाज़ फिजा में उभरी और साईं कोड़ियल के सर्दी के मारे दांत बजने लगे। अचानक उसने सामने दबीज कहर की चादर को ज़रा चाक होते देखा और दूसरे ही लम्हे दहशत से उसकी आंखें फट गईं। सामने एक इंतहाई कड़ी सूरत चुड़ैल खड़ी थी। रंगत इंतहाई स्याह, खिचड़ी से बाल, तोते की चूंच की तरह मुड़ी हुई नाक और हाथों की उंगलियों के लंबे लंबे नाखून, चेहरा तकून, कदरे खमीदा, और सबसे ज़्यादा जो शय उसे डरौना बनाए हुए रही थी वो उसकी बगैर भुवों और पलकों की सुर्ख अंगारा आँखें और नागन की तरह लिपलपाती हुई ज़ुबान। साईं कोड़ियल को तो जैसे सख्ता होने लगा, मगर वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए जंतर मंतर का विरद जारी रखे हुए था। तब अचानक उस मकरू सूरत चुड़ैल ने उसके करीब आते ही गैर इंसानी और बैठी हुई आवाज़ में कहा, तुझे मैंने पहले भी मना किया था हमारा पीछा छोड़ दे, लेकिन तू खुद को बहुत बड़ा अंतरबाज समझता है। ले अब अपना अंजाम भी अपनी आंखों से देख ले। ये कहते हुए चुड़ैल ने अपना एक मुड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ साईं कोड़ियल की तरफ बढ़ाया, जो दराज होते होते उसके चेहरे तक पहुंच गया। अब दो बड़े बड़े नाखूनों वाली उंगलियां उसकी दोनों आंखें फोड़ने को करीब आने लगीं। उधर साईं कोड़ियल शाह ने अपना स्याह इल्म का एक मंत्र मुकम्मल करते हुए अपने इर्द गिर्द फूंक मार दी। उस करीब सूरत चुड़ैल के बढ़ते हुए हाथों के तेज नाखूनों से यूं चिंगारियां फूटीं जैसे वो किसी गैर मरी बिजली की तार से टकरा गई हों। दफतन उसकी हलक से समा खराश चीख उभरी, जिससे आसपास का माहौल लर्जा कर रह गया। साईं कोड़ियल ने अपना अमल कामयाब होते देखा तो उसे कुछ हौसला हुआ और अब खौफ की जगह एक जोश अमेज जुनून ने ले ली। वो अब इस सूरत में उस रूह को अपने कब्जे में कर लेना चाहता था जो इस वक्त एक भयानक चुड़ैल के रूप में थी, जिसके बारे में साईं कोड़ियल शाह का ख्याल था कि उसे बट साईं ने अपना गुलाम या मती बना लिया है। चुड़ैल के वार से बचने के लिए साईं कोड़ियल ने चूँकि अपनी गैर मरी हिसार कायम कर लिया था, मगर उसमें यह कबाहत थी कि वो अपने इस जदोई हिसार में रहते हुए उस चुड़ैल के खिलाफ कोई वार नहीं आजमा सकता था। इसलिए साईं कोड़ियल शाह ने उसी में आफियत समझी कि चिपका खड़ा रहे। मगर उधर वो चुड़ैल के रूप में सोमरी की बदरूह अपना दुश्मन नंबर 1 छोड़ने को कहाँ तैयार थी। उसने एक बार फिर करीह अंगेज चीख मारी और दूसरी लम्हे उसने साईं कोड़ियल की तरफ अपना मकरू चेहरे का रुख करते हुए मुंह खोल दिया। खुलते खुलते उसका मुंह गार की तरह हो गया और उसके अंदर से लिपलपाती हुई ज़ुबान खौफनाक असदे की सूरत में बाहर निकली और आग की फुंकारियाँ मारता हुआ असदहा साईं कोड़ियल शाह की तरफ बढ़ने लगा। साईं कोड़ियल ने यह खौफनाक मंजर देखा तो उसका रहा सहा हौसला फिर दम तोड़ने लगा। न जाने क्यों उसे एहसास होने लगा कि आफियत इसी में है कि इस बदरूह को कब्ज़े में करने की बजाय इससे जान बचाकर भाग लिया जाए। उधर उस चुड़ैल की ज़ुबान की सूरत में असदहा फ़िज़ा में बल खाता हुआ साईं कोड़ियल के करीब पहुंचा और फिर उसने ज़ोर से आग की फूंक मारी। शोले लपके और देखते ही देखते साईं कोड़ियल के गिर्द आग फैल गई। साईं कोड़ियल का हिफाजती हिसार जलकर राख हो रहा था। उसने जो अपने गैर मरे हिफाजती हिसार को इस तरह जलते हुए देखा तो उसको जान के लाले पड़ गए। उसने जल्दी से अपने चुगे में हाथ डालकर एक मुर्दा उल्लू की कटी हुई गर्दन निकाली। साईं कोड़ियल ने उस पर कुछ पढ़कर फूंक मारी और फिर कटा हुआ सर हवा में उछाल दिया। फिजा में वो दूर कहीं
किसी उल्लू की सोगवार सी चीख गूंजी और साईं कोड़ियल के हाथ से फेंकी हुई उल्लू की कटी हुई खोपड़ी फिजा में मुअल्लक हो गई। फिर अगले ही लम्हे उल्लू के कटे हुए सर की गोल गोल आंखों से आंसुओं की जड़ी बह निकली। अब उल्लू की वो आंसू बहाती खोपड़ी साईं कोड़ियल के गिर्द मुअल्लक हिसार में लगी आग के ऊपर गर्दिश करने लगी और उसकी आंखों से बहते आंसुओं से हिफाजती हिसार में लगी आंख बुझने लगी। और उसके बाद वही खोपड़ी दोबारा हिसार से बाहर निकलकर चुड़ैल की असदहा नुमा शोले उगलती ज़ुबान के ऊपर मुअल्लक होकर उस पर आंसू बरसाने लगी। असदे के हलक से एक चिंगार निकली और आने वाहद में उसने अपने बड़ा सा मुंह फाड़ कर उल्लू की खोपड़ी को निगल गया। कब्रिस्तान के पुरहैबत माहौल में अजीब पुर इसरार सी गूंज तारी थी। मकरू सूरत चुड़ैल की लंबी ज़ुबान जो एक खौफनाक असदे की सूरत में फुंकारे मार रही थी, वो उल्लू की खोपड़ी को निगल कर कौड़े की तरह इधर उधर लहरा रही थी। साईं कोड़ियल के चेहरे पर एक बार फिर परेशानी के आसार फैलने लगे, ताहम उसरे कदरे उसे तसल्ली थी कि उसने अपने गिर्द जो हिफाजती हिसार कायम किया है वो अभी महफूज था। वो अब खामोशी से खड़ा चुड़ैल के अगले वार का मुंतज़िर था। ऐसे में अचानक असदहे ने एक करीज चीख मारी और पागलों की तरह इधर उधर अपना सर पटकने लगा। असदहे की हालत देखकर साईं कोड़ियल की चंदी चंदी आंखों में मसरत जागी। वो जान गया था कि असदहे को मुर्दा उल्लू की वो आंसू बहाती जादुई खोपड़ी को निगलना कितना महंगा साबित होने वाला था। दफतन असदहा यूं टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर गया, जैसे उसने उल्लू की खोपड़ी की बजाय कोई खतरनाक बम निगल लिया हो। उधर चुड़ैल के हलक से भी बड़ी खड़खड़ाती हुई आवाज़ बरामद हुई थी और अजीब मज़का खेज अंदाज में नीचे को झूल गई थी। ऐसे में अचानक चुड़ैल ने अपना दायां हाथ बुलंद किया तो साईं कोड़ियल की रूह फना हो गई। वहाँ अब मदम सी रोशनी में चमकता हुआ चौड़े फल वाला खौफनाक खंजर नज़र आ रहा था। अगले ही लम्हे अगर उस करीब सूरत चुड़ैल ने अपना हलक से एक बेहानक चीख मारी और उस खौफनाक तेज फल वाले खंजर से अपनी खून आलूद ज़ुबान काट दी। फिर कुछ देर तक कोड़ियल शाह को खूनी नज़रों से घूरती रही और उसके बाद खरखराती आवाज़ में उसने मुखातब किया, कोड़ियल, आज तो तू मेरे हाथ से बच गया, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे खबरदार करती हूँ कि मेरा और मलूक का पीछा छोड़ दे, वरना बड़ी इबरतनाक मौत मरेगा मेरे हाथों। जा, अब दफ़ा हो जा। चुड़ैल कोड़ियल को धमकी देने के बाद कहर आलूद तारीकी में गायब हो गई। साईं कोड़ियल अपनी जगह दम साधे खड़ा रह गया। सखा के गिर्द पास पड़ोस की बहुत सी औरतें जमा थी जो काफ़ी देर से उसकी दिल जमी में मसरूफ़ थी। सखा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस उसके दोनों भाइयों मीर नवाज़ और अहमद नवाज़ को जब से गिरफ़्तार करके ले गई थी, बेचारी सखा ने भाइयों के गम में रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। सुबह से शाम होने को आई थी, मगर उसने एक लुकमा भी रोटी का अपने हलक से नीचे नहीं उतारा था। आहिस्ता आहिस्ता सब औरतें रवायती अंदाज में उसकी तसल्ली तशफ़ी करके रुखसत होने लगी। ताहम उन खुदा तुर्स औरतों ने इतना ज़रूर किया कि मासी मुरादा नामी एक उम्र रसीदा औरत को उसके पास छोड़ दिया, ताकि अकेली जवान जहान लड़की घर में खुद को तन्हा महसूस ना करे। मासी मुरादा का दुनिया में कोई न था, बस वो उसी तरह दूसरों के सहारे अपना गुजर बसर करती थी। सुखा को उससे काफ़ी सहारा महसूस हुआ, मगर दिल गम से बूझल था। गुबार अश्कों ने आंखें धुंधला दी थी। उसका मासूम जहन ना इंसाफ़ी की इस पुरानी और रवायती कथा को भी समझने से कासर था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो जी थी बेइंसाफ़ी और रवायती जबर की। सुखा के मासूम जहन में और तो कुछ नहीं आया, अलबत्ता उसके कानों में काले भजंग इंस्पेक्टर आली जा के अल्फाज ज़रूर गूंजने लगे, जो उसने उसकी दादे फरियाद के जवाब में उसे कहे थे। छोकरी, अपने दोनों भाइयों की बेकसूरी साबित करने के लिए थाने आ जाना। सखा जलाद सिफत और बदखसलत इंस्पेक्टर आली जा के इन अल्फाज की मैंने खेजी नहीं समझ पाई थी।
उसने तो एक जाल फेंका था सुखा जैसी मासूम और सादा लो चिड़िया के लिए। अब ये चिड़िया अपनी सादगी में आली जा जैसे घाघ शिकारी के जाल में फंसने के लिए जा रही थी। शाम के साए अभी गहरे नहीं हो रहे थे। सुखा ने चादर संभाली। मासी मुरादा से किसी और जगह का बहाना करके वो सीधी थाने पहुंची। वहां शायद मुंतज़िर शिकारी ने शिकार की मतवक्का आमद पर पहले ही से घात लगा रखी थी। लिहाजा जैसे ही सुखा थाने की इमारत में दाखिल हुई, उसे हाथों हाथ लिया गया और बेनफ्स नफीस उसे इंस्पेक्टर आली जा के कमरे में पहुंचा दिया गया। इंस्पेक्टर आली जा एक बदहैबत पहाड़ की तरह मेज़ के पीछे कुर्सी पर दुबका बैठा था। कमरे में गैर मामूली तन्हाई पैदा कर दी गई थी। थोड़ी देर पहले जो दो सिपाही सुखा को लेकर यहाँ पहुँचे थे, उन्हें फिलफौर कमरे से निकल जाने और मखसूस इशारों में कुछ मज़ीद हदायतें भी दे दी गई थी। लिहाजा अब कमरे में सुखा और इंस्पेक्टर आली जा के अलावा कोई तीसरा नहीं था। कमरे में रोशनी फैली हुई थी। सुखा हाथ जोड़े इंस्पेक्टर के मेज़ के सामने सरापा फरियाद बनी खड़ी थी और इंस्पेक्टर आली जा की तेज़ घूरती हुई शक्कर जैसी आंखें उसकी असीरों मासूम सरापे का जायज़ा ले रही थी। साईं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाइयों को छोड़ दो, वो बेकसूर हैं। सखा आर्जी के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर आली जा से बोली। अच्छा, उसकी नाला फरियाद पर इंस्पेक्टर आली जा ने कहका लगाने वाले अंदाज में अपना मुंह फाड़ा और फिर एक झटके से कुर्सी से उठकर बेदस्तूर उसके चेहरे पर अपनी तेज नज़रें गाड़े उसके करीब पहुंचकर मैनी खेद लहजे में बोला, छोकरी, तेरे पास इस बात का कोई सबूत है कि तेरे दोनों भाई बेगुनाह हैं? इसकी बात सुनकर बेचारी सखा थोड़ी गड़बड़ा सी गई और फिर मलतजी लहजे में बोली, छोकरी, तेरे पास इस बात का कोई सबूत है कि तेरे दोनों भाई बेगुनाह हैं? उसकी बात सुनकर बेचारी सखा थोड़ा गड़बड़ा सी गई और फिर मलतजी लहजे में बोली, सबूत तो मेरे पास नहीं है, पर साईं, मैं अपने भाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी का खून नहीं कर सकते। हर खूनी कातिल की बहन का अपने भाई के बारे में यही जवाब होता है। इंस्पेक्टर आली जा ने थानेदाराना अंदाज का रवायती जुमला दोहराया। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ साईं, ये कहकर सुखा सिसकते हुए उसके पैरों पर झुक गई और ऊंधे हुए लहजे में बोली, साईं, मेरे इन भाइयों के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपको रब साईं का वास्ता मेरे भाइयों को छोड़ दें। सुखा की बेचारगी और आंसुओं से पुर आंखें किसी भी साहिब दिल का दिमाग झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी, मगर उस इबलीस सिफत पुलिस इंस्पेक्टर का आली जा के कानों पर जूं तक न रेंगी थी, बल्कि वह सुखा की काबिल रहम हैबत कज़ाई को और ही नज़रों से देख रहा था। तब ने उसने पैरों पर झुकी हुई सुखा को दोनों बाजों से पकड़ कर खड़ा किया और जज्बात की पुरतपश लर्ज़श से बोला, छोकरी, पैरों में तेरी जगह नहीं है, इधर आ, यहाँ बैठ कुर्सी पर, आजा, शाबाश।